Hi guys, hope all of you are doing great and yes guys, so today we are gonna do sprint text का last session। तो मेरे तो आंसू आ गए थे कि sprint text हमारा खत्म हो गया है but anyways guys, तो but it's a very good thing कि हम लोगों ने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा questions कर लिए हैं and yes, as you can see, today is the last session and we'll be discussing about our environment. Very important chapter guys. Generally हम लोग इसको neglect कर देते हैं, है ना? We try to neglect it, but it is very important क्योंकि guys trust me, this time it will have a very high weightage. This chapter will have a high weightage. So we will be doing this chapter in more detail, particularly आगे जाके भी, ठीक है? तो yes guys, sprint text चल रहा है हमारा, बहुत ही amazing है and yes, did you see my new jacket? Vedantu master teacher. और इस पे देखो मेरा नाम भी लिखा हुआ है, अमृत राज। Yes guys, teacher by choice, we are all teacher by choice, है ना? तो moving on this, moving forward, Vedantu is so amazing, अच्छे गिफ्ट देता है हमें। तो यार, तो yes guys, तो here is food chain and food web के बारे में पढ़ेंगे हम और components of ecosystem, trophic levels. These are the 4 important topics which are very important from the our environment perspective, right guys? तो we will be talking about them, है ना? Yes, तो this is the timetable guys. Today we have reached here. वो कहते हैं ना, आपकी मेहनतें आपको सफल कराती हैं, तो आज हम अब मेहनत कर करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। अपने आप को खुद से कहो शाबाश अगर आपने ये सारे सेशंस देखे हैं। इफ यू हैव सीन ऑल दिस सेशंस लाइफ प्रोसेस 1 2, रिप्रोडक्शन 1 2, हेरिडिटी 1 2 एंड आवर एनवायरनमेंट, तो गाइस फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू डू इज टैप योरसेल्फ, से गुड जॉब। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करा है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, लाइक प्राउड ऑफ यू एंड माई सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो एनीवेज गाइस, तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों ने इतना सारा कर लिया है। तो टुडे दिस कंप्लीट दिस वन ऑल्सो एंड अभी तो बस दिसंबर हुआ है यार, अभी तो जनवरी बचा है, फरवरी बचा, तो वी आर गोना डू अ कंप्लीट थॉरो रिवीजन, ठीक है? तो मूविंग फॉरवर्ड, यस सेम थिंग विद केमिस्ट्री एंड यस, अरे कहाँ चला गया? यस सेम थिंग विद केमिस्ट्री, इंग्लिश, yes guys, maths and yes, physics also and SST also. So guys, the first thing what I want all of you to do is guys subscribe to this channel. Subscribe to, yes guys, Vedantu 9th and 10th channel, and there's one more amazing channel. Do you guys know about it? Yes guys, there is NCRT 11th and 12th. Guys, we have NCRT 11th and 12th channel, ठीक है, जहां पे soon I will be doing ANA, sorry, ask me anything session. तो guys, there's NCRT 11th and 12th grade. अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ ask me anything session करना, तो subscribe to this channel and it's an amazing channel. And guess who teaches biology over there? Yes, मुझे comment box बताओ कि वहां पे biology कौन पढ़ाता है. And yes guys, here we are. This is the homework question which I had given in the last class, ठीक है? तो नहीं होता कि जब स्कूल में नहीं होता था कि टीचर पूछते कौन कौन होमवर्क करके लाया है, तो कई बार वो होता है ना कि रात भर हम लोगों ने होमवर्क करा होता है एंड गेस व्हाट करके नोटबुक वहीं पे छोड़ के आ जाते घर पे ही, मतलब स्कूल लेके नहीं जाते। कितने लोगों के साथ हुआ है? एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हेन द टीचर आस्क्स ना, और व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द नोटबुक अपने बैग में, और जब आपकी हार्ट बीट रुक जाती है, तो ठीक है, आई कुड सडनली फील दैट। बट ऑनलाइन क्लासेस है तो आपकी कोई धड़कन रुकने की जरूरत नहीं है। आजकल सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे होते हैं, कोई होमवर्क चेक नहीं करते हम लोग, है ना? तो ऑन दिस नोट गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है? Why are asexual reproducing organisms capable of showing heredity features? क्यों वो heredity features शो कर पाते हैं? क्योंकि बेटा they get the DNA from their parent. They get DNA from their parent. They require only single parent. So when they divide, each cell is cell divided into bearing variations in a DNA. So there are more chances of heredity features. Very good यार, बहुत सही नीलम नैन, great job. Because they have less variations, they reproduce by mitosis, whereas sexually reproducing organisms perform meiosis, where crossing over occurs, which is increase the chance of variation, which does not happen in asexually reproducing organisms. Guys, very good. Guys, I would like to clear एक छोटा सा concept over here. ठीक है, हमें generally लगता है कि asexually reproducing organism में zero variation होता है, zero variation। बेटा नहीं, zero variation नहीं होता, क्योंकि होता है ना यार, कई बार आप देखो, आप जेरोक्स लेने जाते हो, कई बार आप जेरोक्स कॉपी लेने जाते हो, तो क्या होता है, कई बार जेरोक्स में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, पेपर इधर उधर हो जाता है, या फिर यू नो नथिंग कैन बी एग्जैक्ट 100% कॉपी ऑफ समथिंग, इट कैन बी 99% कॉपी हो सकता है ना? बट 100% होना बहुत ही मुश्किल है, मतलब क्योंकि देखो यार, जब ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म भी अपना डीएनए पास करता है, तो द डीएनए स्ट्रैंड्स आर मेड अगेन, मतलब जो डीएनए होता है उसकी कॉपीज बनती हैं,
ठीक है। अब जैसे कि एक सेल है, ये 2 सेल में बन रहा है, तो इसके पास मतलब 2n क्रोमोसोम था, तो जस्ट बिफोर द डिवीजन इट वुड हैव 4n क्रोमोसोम। जब तो इसने अपना डीएनए डबल करा है, डीएनए डबल करा है, तो डीएनए अपना बनाया होगा, और बनाते बनाते कई बार क्या होता है, थोड़ी सी इधर उधर चूक हो जाती है, तो इट वी वुड से इट इज मोस्टली। सेक्सुअल में तो बहुत ज्यादा वेरिएशन के चांसेस होते हैं, बट हियर द चांस ऑफ वेरिएशन आर लेस, बट वेरिएशन डू एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि आपने कभी सुना होगा कि बैक्टीरियाज भी आजकल थोड़े स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हैव यू हर्ड ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज? आपने सुना है कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज होते जा रहे हैं, मतलब क्योंकि जो दवाइयां पहले इफेक्टिव थी वो अब इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि क्या हो रहा है हमारे साथ साथ भैया हमारा बैक्टीरिया अभी इवॉल्व हो रहा है, बहुत समझदार है बैक्टीरिया। आप तो समझदार हो रहे हो जैसे कि देखो हमारे बच्चे, देखो हम आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हो, ठीक है, तो बिकॉज यू आर मोर टेक savvy than us, ठीक है, तो योर किड्स आर गोना बी मोर समझदार देन यू, ठीक है, दैट इज रूल ऑफ लॉ। सो सिमिलरली बैक्टीरिया की फैमिली में भी तो होगा ना भैया, दादा बैक्टीरिया, पापा बैक्टीरिया, मम्मी बैक्टीरिया, फिर बच्चे बैक्टीरिया, फिर उनके बच्चों के बच्चे बैक्टीरिया, तो दे आर गोना बी लिटिल स्मार्टर, ओके, लिटिल अडैप्टिव, राइट। तो दिस इज द वे वर्ल्ड वर्क्स, तो यस दे आर गोना बी डेफिनेटली स्मार्टर। ओह माय गॉड, जुनैद अली के चश्मे देख रहे हो भैया, चश्मा देख रहे हो, नीला चश्मा एकदम बढ़िया, वेरी गुड जुनैद अली, अमेजिंग आंसर बेटा। तो द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ओनली सिंगल पेरेंट्स, so they divide cells, तो bearing no variation मतलब bearing very little variation in DNA, so there is more chance of hereditary features. Very good यार, I was expecting कि आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे इस क्वेश्चन का, but looking at you all I am very much impressed. Thank you sir for amazing session. The asexual reproducing organisms requires only one parent. यार सब ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा। अंजलि योगी, यू आर वेरी योग्यवान। ओ माय गॉड गाइस, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय यू गाइस। ओ माय गॉड, ऋषिका शर्मा, ये तो हमारी लाइक यू नो शी इज आवर रेगुलर स्टूडेंट, शी कम्स डेली। सर फैंटास्टिक सेशन, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी सो मच। होमवर्क आंसर showing hereditary features because they require only a single parent of reproduction. So when they divide, the cell itself divide into two bearing no variation in DNA, so there is more chance of heredity. Wow. So guys, I can see the level of confidence in your answers, guys. Trust me on this, touch wood. And I can see the level of confidence and the level of understanding, and I'm feeling so happy about all these things. I love you all. Amazing, guys. तो चलो आज का शुरू करते हैं. We do not inherit earth from our ancestors. We borrow from our children. Oh my God. तो गाइस जो हमने जो अर्थ है आप लोगों से बोरो करा है, ठीक है, मतलब द होल पॉइंट इज कि हमें अर्थ को बचाना चाहिए, ठीक है। द अर्थ इज, देख रहे हो अंकल, छोटे अंकल, तो अर्थ इज गाइस, अर्थ इज गेटिंग वेरी पोल्यूटेड। आपको देखा होगा आपने दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, यू नो लाइक दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली के बारे में ज़्यादा बात करता रहता हूँ, तो यस देयर इज टू मच ऑफ पोल्यूशन ओवर देयर, एंड यू नो वी शुड बी, एंड यू गाइस स्पेशली, यू नो आप लोगों को देखना पड़ेगा, हम लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं और आप लोग भी आगे जाके आपको भी अपने लेवल पे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। Yes, right. So moving forward on this, so let us start. Yes, guys. So here's the first question for us. Here's the first question. Name the process that is direct outcome of excessive burning of fossil fuels. Oh my God. 1 mark question, guys. 1 minute, and we can do it in 30 seconds. बताओ यार fossil fuel से क्या होता है बताओ? Fossil fuel, guys. The burning of fossil fuels releases carbon dioxide, which is a major global warming gas, which causes global warming, है ना बेटा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैन ट्रैप द सनलाइट एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग, है ना बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड कैन ट्रैप सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कैन ट्रैप सनलाइट एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। वेरी बैड, बहुत खराब बात है, ठीक है गाइस। व्हाई इज ग्लोबल वार्मिंग बैड? बेटा ग्लोबल वार्मिंग इज बैड बिकॉज व्हाट विल हैपन व्हेन द ग्लोबल वार्मिंग में अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, द अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग, राइट। दैट इज व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज बैड, है ना बच्चे। मतलब ग्लोबल वार्मिंग इज बैड। इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इमेजिन करो लक्षद्वीप, मालदीव्स, है ना बेटा, यहाँ पे लैक्स ऑफ पीपल स्टे, और मान लो सी लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, इन लोगों के घर में पानी आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो हैज इंपैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज। बेटा मानसून सही टाइम पे नहीं होता, और होता है तो कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है। हैदराबाद में फ्लड आ जाता है, चेन्नई में फ्लड आ जाता है, मुंबई में फ्लड आ जाता है, कभी तो होता ही नहीं है, और होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वी नीड टू कंट्रोल ग्लोबल का वार्मिंग को हमें कंट्रोल करना है। Yes, I hope my voice is clear, है ना। Moving forward,
Yes guys, so exactly, global warming is a direct outcome of the excessive burning of fossil fuels. Yes, construct a food chain composing of the following: snake, hawk, rats and plants. Construct a food chain composing of the following. Come on guys, tell me क्या होगा इसका आंसर? Yes, फूड चेन. यस गाइस, बहुत ही इजी है. पहला हम लिखेंगे प्रोड्यूसर, लिखेंगे प्लांट्स, है ना भैया. प्लांट्स को कौन खाता है? रैट्स. रैट्स को कौन खाता है? स्नेक. एंड स्नेक को कौन खाता है गाइस? हॉक. देखो अब एक नॉर्मल बच्चा ऐसा लिख देगा, नॉर्मल बच्चा ये लिख के आ जाएगा, इसको मार्क्स मिल भी जाएंगे. बट हम क्या हैं? हम नॉर्मल बच्चे हैं? नहीं, हम हैं अब नॉर्मल बच्चे. अब नॉर्मली स्मार्ट बच्चे. तो हम इसके नीचे लिख देंगे भैया प्रोड्यूसर. फिर हम लिखेंगे इसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर. गाइस इमेजिन, जब आपका टीचर देखेगा ना, आपको कहेगा वाह क्या बात है, क्या बढ़िया बच्चा है. मतलब समझ रहे हो, प्लांट के नीचे हमने लिख दिया प्रोड्यूसर. यार हमें पता ही तो है, ये इसमें कोई एफर्ट लग रहा है? हमें पता है प्लांट प्रोड्यूसर होता है, हमें पता है रैट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर. समझ रहे हो गाइस? जस्ट राइट इट. प्लांट प्रोड्यूसर, रैट प्राइमरी कंज्यूमर, स्नेक सेकेंडरी कंज्यूमर, हॉक टर्शियरी कंज्यूमर. वाओ, टीचर कहेगा वाओ वाओ क्या बढ़िया बच्चा है, वाओ. तो यू विल गेट मोर मार्क्स, है ना गाइस? वेरी गुड. मतलब इसमें एक ही मार्क्स का है. देखो ये क्वेश्चन एक ही मार्क्स का, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा. बट जो आपका 5 मार्क का क्वेश्चन होगा ना, द टीचर विल हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन अबाउट यू, राइट? तो मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि आप लोगों का बहुत अच्छा इंप्रेशन है, वाह सर कितना बढ़िया बताते हैं. यहाँ पे लिख दो, नीचे लिख दिया प्रोड्यूसर, है ना बेटा. यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे लिख दिया सेकेंडरी कंज्यूमर, पूरा लिखना. यहाँ पे लिख दिया टर्शियरी. गाइस इट विल हार्डली टेक 1 minute ऑफ योर टाइम. नेक्स्ट वन, flow of energy in the ecosystem is always 1 mark or 1 minute and 30 seconds. Hey bro, tell me, unidirectional, bidirectional, multidirectional or no specific direction? Very easy guys. The flow of direct energy is always unidirectional. मतलब देखो प्लांट, देखो हमेशा प्लांट से एनर्जी हर्बीवोर में जाती है और हर्बीवोर से जाती है कार्निवोर में, ठीक है ना? मतलब देखो शेर है, एक है शेर, ये है शेर, ठीक है. दिस इज लायन. तो लायन गाइस हमेशा डियर को खाता है, डियर कभी लायन को नहीं खाता. मतलब एनर्जी फ्लोज फ्रॉम डियर टू द लायन, है ना? लायन से डियर को नहीं खाता, है ना? सिमिलरली प्लांट से एनर्जी हर्बीवोर में जाती है. अब ये मत कहना कि सर हर्बीवोर मर के तो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं. न्यूट्रिएंट की बात नहीं कर रहा मैं, एनर्जी की बात कर रहा हूं. प्लांट गेट एनर्जी फ्रॉम द सन. Plant get energy from the sun and herbivore get the energy from the plant. Plant does not eat herbivore, है ना बेटा? Plant does not eat deer, plant does not eat rat, ठीक है बेटा? तो वो चीज होती है. तो flow of energy is always unidirectional. Moving forward, yes. Now, which of the following limits the number of trophic levels in a food chain? Very good. Which of the following? अच्छा, सबसे पहले अबे मेरी ड्राइंग कहाँ गई? हाँ बेटा, जिसको भी ये ड्राइंग पसंद है प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है? आई नो ड्राइंग पसंद नहीं आई, बट फिर भी सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक. गाइस वेदांतु 9th and 10th इज द चैनल्स नेम. दिस इज जस्ट December. We have January left, we have February left. We are going to be coming with more amazing revision sessions for you guys. If you don't want to miss that, please subscribe to this channel. And yes, do let me know in the comment box आपको ड्राइंग कैसी लगी. And yes बताओ, नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल को कौन लिमिट कर देता है? वाटर, अच्छा. पोल्यूटेड एयर, डेफिशिएंट फूड सप्लाई, डिक्रीज इन द एनर्जी लेवल एट हायर ट्रॉफिक लेवल. व्हाट लिमिट्स द नंबर ऑफ फूड चेन? यस गाइस, कम ऑन. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. यस गाइस, डिक्रीज इन द एनर्जी. बेटा देखो हमने देखा था जब एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर, देयर इज ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर्ड. मतलब जैसे कि देखो मैंने प्लांट खाया तो प्लांट के पास 100% एनर्जी थी, तो प्लांट का ओनली 10 यूनिट्स मेरे पास आई, ठीक है? अब मेरे पास 10 यूनिट्स एनर्जी. अब लायन आ गया मेरे घर पे, लायन ने आके मेरे को खा लिया, तो मेरे 10 यूनिट में से लायन के पास कितनी एनर्जी जाएगी? बस 1 यूनिट एनर्जी जाएगी. तो कहोगे सर बाकी की 9 यूनिट एनर्जी कहाँ गई? मैं कहूँगा बेटा मैं पढ़ा रहा था ना, तो मेरी 9 यूनिट एनर्जी पढ़ाने में निकल गई. आर यू गेटिंग? बट सिमिलरली, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गाइस, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड. मतलब जैसे कि हिरन, there is a hiran मतलब deer, there is a lion, ठीक है? Hiran has 100 units of energy, but it runs from the lion, तो it spends 90 units of energy. And बाकी जब lion इसको खाता है तो उसको बस 10 units of energy मिल पाता है. Are you getting me? That is why guys, lion will have to feed on many hiran. If you see,
द नंबर ऑफ द टॉप, मतलब जो सेकेंडरी या टर्शियरी कार्निवोर होते हैं वो कम होते हैं. प्रोड्यूसर्स आर हाई इन नंबर. क्यों? क्योंकि हर्बीवोर विल हैव टू ईट लॉट्स ऑफ प्लांट, टाइगर विल हैव टू ईट लॉट ऑफ हिरन. जंगल में कितने शेर होते हैं? जंगल का राजा कितना होता है? एक होता है. ठीक है, तो यस, दैट इज वाई वी कैन नॉट हैव मोर ट्रॉफिक लेवल्स गाइस. क्योंकि देखो अब ठीक है, 100 यूनिट्स प्लांट के पास थी, मैंने खाया, मेरे पास 10 यूनिट्स आई, लायन के पास आया 1 यूनिट, तो लायन को और भी लोगों को खाना पड़ेगा. मेरी सोसाइटी के 2-3 अंकल घूमते नीचे बूढ़े से, उनको भी खा जाएगा, तो ही विल बी एबल टू सैटिस्फाई इट्स नीड. बट इफ someone eats tiger, they will get only 0.1% of energy, which will not be sufficient for them to survive. That is why there can be only few trophic levels. Moving forward, very good, clapping. I hope you're understanding, guys. I hope you're enjoying the session. I love you guys. So yeah, these are 1 mark questions, guys. We are doing it in 1 minute. मतलब you will get 1 minute in exam, but यहाँ पे तो 30 seconds यार. बायो तो बहुत easy होती है. Yes. अब मुझे बताओ कि जो वेदांतु की जैकेट है कैसी लगी आप लोगों को? हाँ, तो दिस इज कस्टमाइज्ड जैकेट व्हिच वेदांतु इज गिविंग इट टू अस. मतलब टीचर्स को दिया उसने. अमृत टीचर बाय चॉइस, अमृत राज. या व्हाट इज दिस 10% लॉ? व्हाट इज दिस 10% लॉ? गिव एन एग्जांपल. सेम थिंग गाइस जो मैं बता रहा था. Only 10% of energy is transferred from one trophic level to other. Guys, आप बना के भी दिखाओ. 100 यूनिट्स यहाँ पे हैं, 100 किलो कैल से यहाँ पे 10 किलो कैल, देन यहाँ पे 1 किलो कैल. We can do this. 100, 10 and 1 kilo cal. You draw this and you show only 10% of energy is passed from one trophic level. Remaining 90% is lost in respiration and other activity. 90% is lost because of respiration. Respiration क्यों? ताकि energy use करें. मैं कहाँ use करूँ? मैं energy. Respiration कहाँ से होते हैं? Energy, है ना? Respiration and other processes. According to 10% lot available at the next trophic level. For example, देखो इन्होंने भी example के साथ explain करा है. Guys, please in biology, please do write examples and diagrams. Please do that, and please do sit with your pen or paper and do draw diagrams and this thing with me, है ना? Very good. तो guys, there's one more thing I wanted to tell you. आपको पता है वेदांतु का pro subscription? Guys, Vedantu Pro subscription is, है ना बेटा, Vedantu Pro subscription. अब इसमें क्या होता है बेटा? Vedantu Pro subscription, what is there is, yes, Vedantu Pro subscription पे you get to access all the content over there. There are crash courses going on, guys. There are revision courses going on. अच्छा एक बात बताओ मुझे, how many of you are, you guys know that, right? After your class 10th, you will have to choose your stream. That is science, commerce or arts. You will have to choose among these 3. Right guys? So it is very important, it becomes very important. Guys, देखो, अगर आप science लेते हो ना, if you take science, it is considered as a good option because you can do anything. You can become engineer, you can become doctor, you can even do CA and everything. Commerce, you can become a chartered accountant or a business administrator, है ना, whatever. Art में you can become a theater artist, musician or philanthropist, मैं बताता हूँ, anthropologist, sociologist, psychologist भी होते हैं, है ना बेटा. तो see, the thing is, mobility यहाँ से यहाँ पे easy होती है, but you cannot move from here till here. And one more thing generally होता है कि आपके aspirations होते हैं कि हाँ मुझे science करनी है या फिर मुझे commerce करनी है या फिर मुझे arts करनी है. तो guys, अगर आपके class 10th में कम आ जाते हैं ना number, तो you cannot choose the topic of your choice. मतलब you cannot choose the stream of your choice. So that is why 10th class is very important because it is pretty much going to decide your life. So what I want you all to do is कि guys, please be in a position जहाँ पे आप choose कर सको rather than आपको कोई आपके teachers बताए कि आपको क्या लेना पड़ेगा. ठीक है? तो for that is why this is the last leg. There are 2 or 3 months left. So I would say you can go for a Vedantu Pro subscription and make use of this, guys. है ना? Yes. What do you get over here? Unlimited live classes with high level of quizzes. Guys, जो आप Menti देखते हो ना यहाँ पे रोज होता है, तो we have Menti in our every class. ठीक है? तो students love it. Apart from that, you can get to compete with the students all over the world. और मैं तो कहता हूँ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले वर्ल्ड तो छोड़ो, पहले इंडिया में compete कर लो. हमारा बस बबल बहुत छोटा होता है, हम लोग बस अपने स्कूल के बच्चों को देखते हैं. But guys, trust me, the world is very very big. आपके लोकेलिटी में ही 100 स्कूल होंगे, है ना? तो वर्ल्ड इज वेरी बिग, तो यू नीड टू थिंक बिगर. यू कैन वॉच रिप्लेस लाइव क्विज़ेस एंड लीडरबोर्ड. रिप्लेस मतलब कोई सेशन आपका छूट गया, है ना, बिकॉज ऑफ सम इंपॉर्टेंट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, देन यू कैन वॉच द रिप्ले एंड द लीडरबोर्ड अगेन, गाइस. ठीक है? देन प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट विद हैंड रिटन नोट्स ऑफ
मास्टर टीचर, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे गाइस मास्टर टीचर्स के. यस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. मतलब आप क्लिक करो और आपको सारे के सारे नोट्स डाउनलोड करके मिल जाएंगे. एंड यस, doubt solving tests and assignments are also there. Doubt solving guys, yes, along with a person there'll be 3 to 4 more teachers in the same class to solve your doubts. Then what else do we have? We have tests and assignment guys. Test I would say is a very important part, क्योंकि टेस्ट आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड में कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपको कितना समझ आया है, कितना बचा हुआ है. ठीक है. ऑब्वियसली असाइनमेंट्स आर देयर. Moving forward, there are guys 5,000 plus micro courses. Micro courses मतलब chapter wise courses are there. You can make use of that also. Free crash courses, as I told you, revision courses. आप इन सब में भी आ सकते हो. Guys, बहुत ज़्यादा benefits हैं. And there are many free content also. More classes at a lesser price. So guys, you can use this code to get extra 20% off. You can use this to get extra 20% off. Yes guys, you can offer a 1 month course or a 3 month course. अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में भी हमारी क्लासेस होती हैं. तो you can see कि आपको क्या लेना है, क्या सूटेबल लगता है आपको. You can definitely opt for this. Yes guys, it will cost you 9 rupees per class. This is very amazing. Yes. And yes guys, तो यही चीज़ है. आप यूज़ कर सकते हो कोड ARPRO to get extra 20%. And guys, the most important thing is if you feel कि यार थोड़ा अफोर्डेबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, गाइस डू नॉट वरी अबाउट इट. यूट्यूब पे हम पूरा पढ़ाएंगे, बट हाँ, द व्हाट विल टेक ऑन यूट्यूब इज यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन. वेदांतु पे उस पर क्या होता है, उस पर आपको आपकी शेड्यूल रहती है क्लासेस, यू कैन नॉट मिस इट. और आपके पापा ने अगर पैसे दे दिया तो बेटा आपको डंडा मार के बिठाते हैं. तो दैट इज सेल्फ मोटिवेशन होता है, वहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन फैक्टर ज़्यादा हो जाता है. एंड देयर इज मोर कनेक्ट विद द टीचर ओवर देयर. यहाँ पे कनेक्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ओवर देयर. तो यस गाइस, तो डू नॉट वरी, बट अगर आप डिसिप्लिन हो तो यूट्यूब विल बी सफिशिएंट फॉर यू. आई प्रॉमिस यू दैट. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाई देयर इज अ नीड टू बैन द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स. अगेन गाइस, एप्लीकेशन बेस्ड. देखो 2 मार्क्स का है, 2 to 3 मिनट्स मिलता है, हम 1 मिनट में करेंगे. देखो पॉलीथीन बैग गाइस, अब देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना. इसमें क्या है, क्यों बैन करना चाहिए भैया. देखो इसमें एक कीवर्ड होना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल. देयर शुड बी कीवर्ड दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. दिस इज द कीवर्ड ओवर हियर. नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज द कीवर्ड ओवर हियर. ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज द कीवर्ड ओवर हियर गाइस. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना. Why there is need to ban the use of polythene bag? Because it is non-biodegradable and it gets accumulated in the ecosystem, है ना. और आप ये भी अब आप और भी examples लिख सकते हो. There has been evidence, there have been cases where poly bags were found in the stomach of the cow. Cow के stomach में पाया जाता. Whale के, guys, there was a whale, उसके अंदर tons, मतलब 1000 kgs of plastic waste was found. There was a turtle जिसके नाक के अंदर straw घुसा हुआ था. तो you can write all these examples also, है ना, because they are non-biodegradable. But what keyword should have been present? Non-biodegradable. That should be there. है ना बेटा. It cannot be decomposed by the microorganisms, so it does gets accumulated on the land and causes land pollution. ये भी एक और keyword है, land pollution और non-biodegradable. आप example भी लिखोगे guys. Land pollution और water pollution भी करता है. Land and water also. Ocean में होता है ना बेटा. ओशन में भी पोल्यूशन करता है. अब इसका क्या एग्जांपल हमें दिखता है, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ओशन पोल्यूशन हो गया. एंड गाइस, यू कैन आल्सो राइट इट इज फाउंड इन द गट ऑफ काउ, है ना, काउज, वेल्स. आप लिख सकते हो, लाइक दे हैव बीन फाउंड इन द गट ऑफ काउ एंड वेल्स, व्हिच इज वेरी ट्रैजिक, राइट. तो दैट इज व्हाई वी नीड टू बैन द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स. यस, लग रहा है मतलब सब बच्चों ने यहां तक लिखा होगा, बट अगर आपने ये वाला एग्जाम्पल लिख दिया कि भैया वो काऊ के पेट में चला गया पॉलीथीन, अब मजाक करो, उसको बंद करो, समझ रहे हो. तो ये दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट व्हिच विल फेच यू. अरे कोसनवा कहाँ है, कोसनवा के साथ में सोलूशनवा भी है. वेरी गुड. आंखें बंद कर लो, कोई इसको नीचे नहीं देखेगा, बस ऊपर ऊपर से पढ़ो. इसको कोई नीचे नहीं देखेगा. यार मैं छुपाऊं कैसे थी सारी चीजें, बट कोई बात नहीं, मैं पढ़ जाता हूँ. व्हाट आर द 2 फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम. कोई देखो मत इसको और बताओ. एनीवेज, चलो. यार ये तो चीटिंग होगी, ये तो खुद से ही आंसर आ गया पहले, ये तो गलत बात है. तो कोई बात नहीं. तो व्हाट आर द 2 फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम. यस गाइस, क्या है फंक्शन. पहले तो बायोजियोकेमिकल साइकिल. बेटा बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब जैसे कि ऑक्सीजन साइकिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, फॉस्फोरस साइकिल होता है. ये सब क्या करते हैं बेटा, दे हेल्प इन रोटेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. वाटर साइकिल भी आप लिख सकते हो इसमें, है ना बेटा.
एक तो है बायो जियो केमिकल साइकिल, बायोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल दोनों को मिक्स करके, है ना, साइकिल है। ये करते हैं बेटा between the living and the non-living groups. Example भी लिख देना बेटा प्लीज, do write example, that is oxygen cycle, carbon dioxide cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle और water cycle है बेटा। Then again it also helps in flow of energy in a food chain through various steps of eating and being eaten. Food energy flow from one trophic level to other, from the process of being eaten, है ना, and you know फ्लो ऑफ एनर्जी। यार अब ये ठीक है, अब लिख देना ट्रॉपिक लेवल बना के, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, है ना, इट शोज दैट हाउ द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर, है बेटा, वेरी गुड, यस, है ना, इकोसिस्टम हेल्प्स इन फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर, है बेटा, वेरी गुड। क्योंकि इकोसिस्टम में होता है एनर्जी कैसे ट्रांसफर करेगी, है ना, बहुत ही अमेजिंग है गाइस। देखो ये सब वेग क्वेश्चन है, इसका देयर इज नो पर्टिकुलर राइट आंसर, देयर इज नो पर्टिकुलर wrong answer. You can also write it helps in sustenance of life. Two function of the ecosystem, it helps in sustenance of life by close interaction of biotic and abiotic components. अब ये भी तो लिख सकते हो कि ये लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है ना, by providing space for interaction of biotic and abiotic components, है ना। अब क्या खत्म हो गया, आप लिख सकते हो इकोसिस्टम। एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम आर पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यू नो, डेजर्ट इकोसिस्टम, ऑल दीस थिंग्स। सी यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड यू कैन राइट एनीथिंग, है ना, वेरी गुड। Describe the ozone layer is formed. How ozone layer is formed? बेटा वेरी इजी क्वेश्चन है। ये क्या है भैया, दो बार 7 क्वेश्चन आ गया, मैथ्स गलबला गया है, मैथ्स हमारा गलबला गया है, बट कोई बात नहीं, हमारा मतलब है क्वेश्चन करने से, तो हम क्वेश्चन करे ध्यान देंगे और नंबर पे इग्नोर करेंगे। नंबर हम मैथ्स सर की क्लास में देखेंगे, हर सर की क्लास में हम मैथ्स नंबर पे फोकस करेंगे। बायो की सर है ना, बायो सर की क्लास है ना, नंबरिंग आते नहीं है सर को 6 7 के बाद 7 ही आता है। तो इसी बात पे आगे चल देते हैं हम। तो गाइस 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 2 मिनट में करेंगे। बेटा होता क्या है ना, देखो होता क्या है ना, यूवी रेडिएशन से ना, यूवी रेडिएशन से क्या होता है, O3 ब्रेक्स डाउन इनटू O2 एंड O, है ना बेटा, दिस, यस सॉरी, ये होता क्या है ना बेटा, देखो जो ऑक्सीजन आता है, माय बैड, ऑक्सीजन होता है बेटा, इस पे यूवी रेड्स पड़ती हैं और ये O नेसेंट ऑक्सीजन में बन जाता है, फिर ये कहता है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ये O बन के ये बन जाता है O3, ठीक है, ऐसा होता है। ये वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखना है ना। ओजोन लेयर, द ऑक्सीजन इंटरैक्ट विद द यूवी रेडिएशन एंड ब्रेक्स इनटू नेसेंट ऑक्सीजन, दिस नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइंस विद अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म द ओजोन, है ना। ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ सम अंडर वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेयर फोटोसिंथेसिस, है ना बेटा। तो होता क्या है, फ्री ऑक्सीजन कंबाइंस विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, है ना बेटा। तो ऑक्सीजन कंबाइंस विद द यूवी रेडिएशन टू फॉर्म अ फ्री ऑक्सीजन एंड फ्री ऑक्सीजन कंबाइंस विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म अ O3 मॉलिक्यूल। तो बेटा ये क्या कहना चाहता है, बेटा देखो जब अर्थ फॉर्म हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, 4.5 मिलियन या बिलियन ईयर्स बैक फॉर्म हुआ था, तो बेटा द अर्थ का एनवायरनमेंट वाज नॉट लाइक व्हाट इट इज टुडे, द अर्थ्स एनवायरनमेंट वाज नॉट लाइक व्हाट इट इज टुडे, एंड इट वाज वेरी वेग, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे यू नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना, बैक्टीरिया बना, फिर प्लांट बना, तो फिर ऑक्सीजन रिलीज होने लगा, पहले ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट आप उसको अवॉइड कर सकते हो, you can write from here itself, है बेटा। next one, what is biological magnification, illustrate the help of an example, very good बेटा। increase in concentration of non biodegradable substances, from one trophic level to another. Yes guys, so what is this biochemical? Increasing the concentration of non-biodegradable, guys, very important, non-biodegradable from one trophic level to other, है ना, that is biomagnification. Example बेटा आप लिख सकते हो मीना-माटा डिसीज, मीना-माटा डिसीज बेटा ये किस में हुआ था, ये उसमें हुआ था, उस केस में क्या कहते हैं, जापान में मर्कुरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया था, तो ये आप लिख सकते हो, जापान में व्हाट हैपेंड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मर्कुरी इंक्रीज, दैट इज लीडिंग टू मीना-माटा डिसीज। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग concentration persistent and pollutant, persistent मतलब non biodegradable pollutant,
है ना, ऑर्गेनिज्म विद राइज इन द ट्रॉफिक लेवल। गाइस देखो मैंने इजी टर्म्स है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, वाटर से फाइटोप्लैंक्टन से फिश और फिर बर्ड्स आप लिख सकते हो। ये देखो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, द अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यू कैन राइट x, यहाँ पे 2x हुआ, यहाँ पे 3x हुआ, यहाँ पे 4x हुआ, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। द होल पॉइंट इज द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, यू शुड मेंशन दैट। दैट मोमेंट व्हेन टीचर सेज आप तो बहुत बढ़िया हो बट आपके फ्रेंड्स आपको बिगाड़ रहे हैं, ये आपने पहले भी कर रखा है, ये पहले भी आ चुका है, बट कोई बात नहीं, रिपीट। आप लोग बहुत बढ़िया बच्चे हो बट आपके यू नो दोस्त, अब तो कह भी नहीं सकते यार दोस्त बिगाड़ते हैं, दोस्त तो है ही नहीं, सब तो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं सर, दोस्ती नहीं है, दोस्ती खत्म होगी। मुझे लगता है अब जब स्कूल जाओगे ना अगले साल, आप यू विल बी यू नो मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। यस गाइस डू लेट मी नो, ऐसा होगा क्या कि आपको लगा अरे यार सारी दोस्ती तो खत्म ही हो गई है। मूविंग फॉरवर्ड, how garbage pollution can be controlled? Guys, very easy question. It's a 5 marker. We will do it in 3 minutes. Yes, how we can do it? Yes, garbage pollution can be controlled by recycling certain waste products like plastic material. We can recycle plastic. Use of biodegradable product as much as we can. Yes. Producing biogas from the organic waste. Yes, we can do that. Separation of biodegradable and non-biodegradable waste. Yes. Making compost of the biodegradable waste. Also adopting to a life of a 3R. Guys, adopting a lifestyle which is based on 3Rs, that is reduce, reuse and recycle. Guys, very good answer this is, है ना, you can understand some keywords, recycle of plastic waste, है ना, use of biodegradable, है ना, use of renewable sources of energy, separation of, yes, ये तो बहुत important point है, ये भी लिख सकते हो, right? तो all these points you can incorporate in your answers. Last question guys, what will happen if we kill all the organisms in one trophic level? What will happen if we kill all the organisms in one trophic level? क्या होगा बेटा, इकोलॉजिकल इंडिस्टर्बेंस हो जाएगी, मतलब इकोलॉजी विल बी डिस्टर्ब, द फूड चेन विल एंड एंड द इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी अफेक्टेड। अगर आपने एक यस गाइस ऑर्गेनिज्म को एक ट्रॉफिक लेवल से हटा दिया, देयर माइट बी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, है ना बेटा। इफ हर्बीवोर्स आर किल्ड देन द कार्निवोर्स वुड नॉट बी एबल टू गेट फूड, would die. If carnivores are killed, then the population of the herbivore will increase. If the producers are killed, then the nutrient cycle will stop. Guys, see, अब इसमें मैं कुछ लिख नहीं पाता, इसमें there is nothing much to write. So what will I fill up with? But it's a 5 mark question. You'll be like, sir, how will I complete? But in that case, you need to write examples पेल दो सारे, मतलब keep writing examples, इसमें सारे के सारे examples पेल दो। What will happen if we kill all the organisms in the trophic level? ये सब होगा भैया, मतलब ऐसे होगा। Examples, can you see? If you write the examples, there will be more space occupy, मतलब space ज़्यादा occupy हो जाएगा। Guys, see, there are gonna be questions जिसमें आपके पास content नहीं होगा, उस केस में क्या लिखोगे आप? examples लिख दोगे, आप diagram बना सकते हो, आप इसमें और भी creative हो सकते हो। You can be creative, you can draw producer, है ना, consumer, है ना, आप कहोगे ये सारा हमने डिलीट कर दिया, वी आर किल्ड ऑल द प्रोड्यूसर्स, तो दिस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इफ यू हैव किल्ड दिस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। लाइकवाइज, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मतलब यू जस्ट हैव टू मोल्ड वॉट एवर यू नो इनटू समथिंग एंड प्रेजेंट इट। ऑब्वियसली 5 में से 5 नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट यू शुड नॉट लूज आउट ऑन 3 एटलीस्ट। मतलब मैक्सिमम इस क्वेश्चन में, जैसे कि देखो अगर आपको नहीं आता इसका, तो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड 90% ऑफ द जनता विल नॉट बी नोइंग। इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग, इसका मतलब ये नहीं कि बस आपको नहीं आता गाइस, आई प्रॉमिस यू पूरे किसी भी बच्चे को नहीं आता होगा। तो इन दैट सिनेरियो इट इज अबाउट गेटिंग द मैक्सिमम मार्क विच अदर पर्सन इज गेटिंग। समझिए, हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है वो बस आपके साथ नहीं हो रहा, वो सबके साथ हो रहा होता है, ठीक है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओह माय गॉड, वेरी गुड। तो वी कंप्लीटेड गाइस दिस टॉपिक्स, हमने फूड चेन, फूड वेब, ओजोन, इसके बारे में बात कर लिया, क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। तो गाइस दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, आई वुड लाइक टू रिपीट। अभी हम और भी रिवीजन करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। इतना रिवाइज करा देंगे कि एंड तक आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो यस गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर फेवरेट चैनल, दैट इज वेदांतु 9th and 10th, है ना। प्लीज, आई कैन सी 40% बच्चे आते हैं, देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करो यार। अगर आपको अच्छा लगा, हमने पढ़ाया, इतनी मेहनत से कंटेंट बनाया, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको सेशन कैसा लगा। तो आज हमने ये खत्म करा और ये भी खत्म करा, और मेरे आंखों से आंसू आ गए क्योंकि स्प्रिंट टेक्स खत्म हो गया है। तो स्प्रिंट टेक्स खत्म हो गया, तो मैं रोऊंगा थोड़ी देर जाके अभी कोने में बैठ के, ठीक है। आई होप आप लोग भी देखो। तो guys keep smiling, and guys as I told you, do not forget to subscribe to guys NCERT 11th and 12th channel. We will do ask me anything session with me। NCERT 11th and 12th channel अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है,
तो बेटा आप मेरे साथ आस्क मी एनीथिंग नहीं कर पाओगे, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, है ना। गो टू वेदांतु NCERT 11th and 12th डालो, और वहाँ पे एक सर पढ़ाते हैं बायो, तो उनका वीडियो देखो एंड यू कैन सब्सक्राइब देयर। मूविंग फॉरवर्ड, yes guys, you can use this code to get extra 20% discount on all the courses. And yes, finally, do not forget to share the link with your friends, like the video and subscribe to this channel. And you can write to me at amrit.raj@vedantu.com and keep smiling, keep loving, है ना। तो smile कम नहीं होनी चाहिए। And I'll see you in the next session guys. Bye bye, have a great day, take care.